অবৈধভাৱে মুকলিকে গৰু মাংস বিক্ৰী হৈ আছে আৰু আমি মনে মনে হাত সাৱটি বহি আছোঁ। যাক আমি মাতৃ বুলি কওঁ, যাক আমাৰ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ মহাদেৱৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, যি গৰুৰ আমাৰ সভ্যতা সংস্কৃতিৰ লগত সম্পৰ্ক আছে, আমাৰ জাতীয় জীৱনৰ লগত সম্পৰ্ক আছে। আমি প্ৰথম বিহুটো আমি গৰু বিহু বুলি পালন কৰোঁ। সেই গৰু কোনোবাই মুকলিকে আমাৰ আগত কাটিব, সেই গৰুৰ বিভিন্ন ধৰণৰ নানান ধৰণৰ ব্যঞ্জন বনাই আমাৰ মানুহক খুৱাব, সেইটো আমি সহ্য নকৰোঁ। গতিকে যিবোৰে কৰি আছে আমি তেওঁলোকক সকিয়নি দি দিছোঁ অলৰেডি। আমি তোমালোকৰ তালৈ যাম, সম্পূৰ্ণ নাম ঠিকনা আমাৰ হাতত আছে। য'তেই পাম তাতেই ভাঙিম, তাতেই কোবাম, তাতেই তোমালোকক নষ্ট কৰিম। এইটো আমি এতিয়ালৈকে মনে মনে থাকিলে মনে মনে নাথাকোঁ। সেইকাৰণে তোমালোকে বন্ধ কৰা। চৰকাৰকো আহ্বান জনাইছোঁ, আপোনালোকে বন্ধ কৰক, নহ'লে আমি কৰিব লগা হ'লে আমি ৰাস্তাত গৈ কিন্তু লম্ফজম্ফ কৰিম। সেইটো কৰিবলগীয়া যাতে নহয়, সেইটো কৰক। আৰু 2, গৰুৰ অবৈধ সৰবৰাহটো এইকাৰণে বন্ধ কৰিব লাগে। কোনে পাৰে? এয়া মুছলমানে খাব, ইয়াত আমি চাই থাকিম? মোৰ মাতৃক, মোৰ আৰাধনা কৰা জীৱটো কাটিব, আমি চাই থাকিম? আপোনালোকৰ কাৰণে কি মোগল আহা, মুছলমানক তুষ্টি কৰা মানে ভাৰতীয় মানুহ হোৱা নেকি? মই নকৰোঁ। কাৰণ মোৰ কাৰণে ভাৰতখন মোগল অহাৰ পিছত, ব্ৰিটিছ অহাৰ পিছত ভাৰতখন অশোকৰ ভাৰত, মোৰ ভাৰতখন চাণক্যৰ ভাৰত, চন্দ্ৰগুপ্তৰ ভাৰত, ৰামায়ণৰ ভাৰত। বুজি পাইছেতো? যিখন ভাৰত আমি যিটো ভাবোঁ, এইখন ভাৰতত মই বিশ্বাস নকৰোঁ। এইখন ভাৰত বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা পৰিচালিত, মোগলৰ দ্বাৰা, ব্ৰিটিছৰ দ্বাৰা, বামপন্থী। লাইচেঞ্চ দেখুওৱা গো মাংস বিক্ৰী কৰি ব্যঞ্জন বনোৱাৰ যদি লাইচেঞ্চ আছে তো ঠিক আছে, কোনে দিছে চাম। কিন্তু অসমত এখন এক্ট আছে, আছাম কেটেল প্ৰিজাৰ্ভেশ্যন এক্ট, য'ত কাউ কিলিং যে ইলিগেল। কাউ কিলিং কৰিব নোৱাৰা, ইয়াত গৰু কাটিব নোৱাৰা। পাৰিবা তেতিয়াহে যেতিয়া গৰুটো 14 বছৰ ওপৰত হ'ব, ডেটটো চাৰ্টিফাইড বাই এ ভেটেনেৰিয়ান। আৰু সেই গৰুটো ফিজিকেলি চেলেঞ্জ হ'ব লাগিব, ইনজিয়ৰ্ড হ'ব লাগিব, নহ'লে প্ৰজনন ক্ষমতাহীন হ'ব লাগিব, তেতিয়াহে পাৰিবা। সুস্থ গৰু কাটিব নোৱাৰা। ৰাইট? চাই কৰিছে, যিটো গৰু কাটিছে এই ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট দেখুৱাই আমাৰ ক'বলগীয়া নাই, কৰা। আৰু যদি সেইটো নাই তেতিয়াহ'লে য'তেই নাপাম তাতেই ভাঙিম। কাৰণ ইলিগেল কামটো ভাঙিবলৈ আমি আইনৰ কাকো বেলেগে কি ক'ব? एक हिंदू भाई थे गुरुजी, वो आए आकर बोले कि मौलाना अब्दुल्ला एक बात बताइए, आपका जो कुरान है वो इंसान जानवरों को मारने की अनुमति देता है, जानवरों को मारने की, यानी आप लोग जो गाय बैल भैंस मांस खाते हैं ना, आपका कुरान इजाजत देता है, तो हम आपका कुरान कैसे पढ़ें? आपके कुरान के अंदर तो जुल्म की बात कही गई है, जानवरों के ऊपर जुल्म की बात है। तो हम आपके कुरान को आई डोंट एक्सेप्ट, आई डोंट वांट टू एक्सेप्ट एंड आई डोंट टू फॉलो द कुरान, बिकॉज कुरान नॉट बेटर, नॉट एक्सेप्टेबल एंड फॉलोएबल। कुरान आपका ऐसा है ही नहीं, क्योंकि कुरान के अंदर कहा गया उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, जानवरों को मारो, कुरान में कहा गया, उनको खाओ। तो जीव हत्या कुरान में कहा गया, तो कैसे कुरान को माने? और आप बोलते हो कि कुरान सबके लिए हुदल लिन्नास, सबके लिए हिदायत है, तो कुरान तो कहता है कि जानवरों को मारो। कैसे हम उस कुरान को खाएं, उस कुरान को माने, और आप जानवरों को खा जाते हो? हमने कहा कि भाई आपका एतराज जो है वो कुरान पर है, मानता हूं इस बात को, लेकिन हमारे कुरान में ही उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम कुरान में सिर्फ ऑर्डर नहीं है, बल्कि और भी ग्रंथों में इसका ऑर्डर है। बोला कौन से ग्रंथ? हमने कहा आपकी ग्रंथ में ऑर्डर है। आपकी ग्रंथ कौन सी? मनुस्मृति। हमने कहा कि भैया अगर मैं कुरान पढ़कर उनको समझाऊंगा तो कुरान पर तो एतराज किया ही है, उनका जो ग्रंथ वो पढ़कर सुनाया जाए उनको। तो हमने उनका मंत्र पढ़ा, प्रोचितम भक्षन माम साम वैष्णवम। इंसान, पशु पक्षी, अगर कोई इंसान मांस खाना चाहे, मुसलमानों आप जब कोई जानवर ज़िबा करते हो तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हो ना, बिस्मिल्लाह पढ़कर आप ज़िबा करते हैं, यानी बिस्मिल्लाह पढ़कर उसको पाक करते हैं, तब उसको खाते हैं। पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, ज़िबा करते हैं, फिर खाते हैं, ताकि वो पवित्र हो जाए, अपवित्र ना हो। तो इस मंत्र में क्या क्या? प्रोचितम भक्षन माम साम वैष्णवम, जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। पशु पक्षी, पशु पक्षी, पशु मालजाल, गाय भैंस को पशु बोलते, पक्षी परिंदा, प्राणी मतलब इंसान, प्राणी मतलब जानवर नहीं, इंसान, प्राणी के भोजन मतलब खाना है। जंगल के पशु पक्षी प्राणी के भोजन है। ये कहा गया कहां पर? मनुस्मृति में। अब हमने उसमें लिखा शुरू में कि अगर इंसान की इच्छा हो मंत्रों द्वारा पवित्र करे, यानी वो गायत्री मंत्र पढ़े, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यम, मंत्र पढ़े, ज़िबा करे, खाए। मंत्रों द्वारा पवित्र करके जानवरों को खाया जा सकता है। किस में लिखा है? मनुस्मृति में लिखा। जैसे हमारा कुरान, हमारी हदीस, हमारी शरीयत की किताब, ऐसे हिंदू भाइयों की मनुस्मृति।
हमने ये बात जब उनको सुनाई, सर नीचे करके चला गया। अब बताइए, सर नीचे करके तो चला गया वो, लेकिन जो बात कुरान में है वही बात मनुस्मृति में है कि नहीं? इसीलिए कहा जाता है कि मनु जी जो थे, मनु जी महाजल पलवान वाले मनु। हिंदू भाई मानते हैं महाजल पलवान वाले को। महाजल पलवान मतलब बड़ा सैलाब वाला। और बड़ा सैलाब किसके ज़माने में आया? हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने में। 950 साल तक इस धरती पर रहे वो। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का प्रचार किया, लोगों को बताया कि लोगों शराब मत पियो, लोगों को बताया कि लोगों सूद मत खाओ, लोगों को बताया कि लोगों मूर्ति को मत पूजो, बेजान है ये मूर्ति को, पत्थर की देवी देवताओं को मत मानो। क्यों? इनके अंदर कोई जान नहीं, कोई हिम्मत नहीं है। इनके सामने रखा हुआ जो मिठाई है, लड्डू, चूहा आए लड्डू लेकर भागे तो लड्डू को भी रोक सकता वो मूर्ति, तो तुम्हें कैसे फायदा और नुकसान पहुंचा सकता है। हजरत नूह ने बहुत समझाया तो हजरत नूह की बात नहीं मानी। बहुत दिनों तक दावत और तबलीग करते रहे, सिर्फ 82 लोगों ने उनकी बात मानी, सिर्फ 82 लोग ईमान लाए। लेकिन बहुत से लोग गांव समाज के होते हैं ना, अगर कोई अच्छा काम करो तो आके क्या कहेगा, यही आया बहुत बड़ा अच्छा काम करने वाला। एक शहर में आग लगी थी, एक जंगल में आग लगी थी, तो वहां पर एक बुलबुल था, बुलबुल परिंदा, वो मुंह में चोंच में पानी ला करके बुझाने की कोशिश कर रहा था। हाथी और शेर कह रहे थे कि ये आया बड़ा आग को बुझाने वाला, उनका मजाक उड़ा रहे थे। बिलाखिर बुलबुल बच गई और सारे हाथी और शेर और सारे कुत्ता बिल्ली बंदर जलकर राख हो गए। उस वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम तबलीग कर रहे थे, अल्लाह के पैगाम को समझा रहे थे, लेकिन लोगों ने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब उनको तंग कर दिया हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको कहा कि नूह तुम कश्ती तैयार करो, इसलिए कि इस धरती के ऊपर जुल्म बढ़ चुका है, जालिम लोग बढ़ चुके हैं, अब इनको दिखाना पड़ेगा, अब ये अपने किए की सजा, अपने किए का मजा चखेंगे। ये जब ये कश्ती बना रहे थे तो लोगों ने इतना परेशान किया कि जब ये कश्ती बनाकर घर जाते थे, सुबह आते थे तो जो कुफ्फार लोग थे, जो मुशरिकीन लोग थे, कश्ती पर बैठकर टॉयलेट कर देते थे, बाथरूम कर देते थे, पखाना करके आ जाते थे। इतना तंग किया, इतना परेशान किया। जब कश्ती बन गई, बनने के बाद अल्लाह ने कहा वफारत तन्नूर, वफारत तन्नूर, देख लेना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम्हारे तन्नूर से पानी उबलना शुरू हुआ। पानी उबलना जब शुरू हो जाए तो अपने मानने वालों को, अल्लाह के मानने वालों को कश्ती पर सवार कर लेना। 82 लोग थे। जब पानी उबलना शुरू हुआ, वकील या अर्जुबलई माअकी व या समा वक़ली वग़ीज़ल मा वक़ुज़ियल वस्तवत वक़ुज़ियल अम्र वस्तवत अलल जूदी वक़ील बुअदल लिल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। अल्लाह के नबी थे वो। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने तमाम मानने वालों को उस कश्ती के ऊपर सवार किया और जोड़े जो माल जाल थे उनको भी सवार कर लिया। करने के बाद उनका जो बेटा था, उन्होंने कहा कि अब्बा, हजरत नूह ने कहा कि बेटे आ जाओ वरना कोई बचाने वाला नहीं है। बेटे ने क्या कहा, अपना सगा बेटा क्या कहता है, अरे अब्बा जाओ आप, मैं पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा, मैं तो पहाड़ मुझे बचा लेगा। हजरत नूह ने कहा कि बेटा आज अल्लाह के कहर गजब से कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, किसी को नहीं बचा सकता। उन्होंने कहा मैं बच जाऊंगा। वो इतने में इतनी बात ही हो रही थी, इतनी जोर से लहर आया कि उनके बेटे को बहा कर लेकर चला गया। 6 महीने तक बारिश हुई थी, 6 महीने तक बारिश हुई, आसमान से भी पानी बरस रहा था और जमीन से भी पानी निकल रहा था। पूरी दुनिया को अल्लाह तबारक व तआला ने डुबो दिया, पूरी दुनिया डूब गई। सिर्फ वो कश्ती 6 महीने के बाद जूदी पहाड़ के ऊपर जाकर लगी। कहा जाता है वस्तवत अलल जूदी, जूदी पहाड़ मुल्क शाम के अंदर कहा जाता है कि वहीं पर यह पहाड़ है। वहां से फिर पूरी दुनिया के अंदर हाम, साम, याफिस, इनके 3 बेटे बच गए थे जो ईमानदार थे, जो मोमिन थे। उनसे वो नस्ल पूरी दुनिया के अंदर चली। लेकिन मेरे भाइयों, वहीं से भटकी। जो हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात हो गई, वफात हो जाने के बाद उनके तीनों बेटों में, उनके तीनों बेटे अच्छे थे
उनके भी बेटे अच्छे थे, उनके भी बेटे अच्छे थे, तकरीबन 2-3 नस्ल तो चला अच्छा। लेकिन जब शैतान के पेट में गुदगुदी होने लगी कि किस तरीके से इनको बहकाया जाए, तो शैतान ने कहा कि अरे एक काम, इनको जानते हो, ये नूह थे, तुम्हारे लक्कड़ दादा थे, ये बड़े नेक थे, ये अल्लाह के वली थे, ये अल्लाह के रसूल थे, इसलिए काम करो, इनको कहीं तुम लोग भूल न जाओ, इनकी बुत बना लो। इनका बुत बना लोगे तो याद रहेंगे, इनके सामने तुम अल्लाह से दुआ करना, लेकिन इनका वास्ता दे के दुआ करना ताकि तुम्हारी दुआ पूरी हो जाए। तो उस वक्त शैतान देखिए कितना प्यारा मीठा रास्ता बता रहा। तो शैतान ने मीठा रास्ता बताया। उन्होंने कहा हम बनाएं कैसे, हमको तो नहीं जानते। शैतान ने कहा डोंट वरी, मैं बना देता हूं ना, मैं लाता हूं लंदन से बेहतरीन कारीगर। तो पत्थर को ढंग से तराशा गया, पत्थर को तराश कर उनके बाप दादाओं की मूर्तियां बनाई गई। उनके सामने खड़े होते थे, ए अल्लाह, ये जो तेरा नेक बंदा मेरा अल्लाह, मेरा दादा, इनकी वास्ते से हमारा फला काम कर दे। ये बातें चल पड़ी, ये वास्ता देना शुरू हो गया, नेक बंदों का वास्ता देना शुरू हो गया। लेकिन जब इनकी नस्ल गुजरी, इनके लड़के पड़पोते वगैरह आए, तो वो जब देखते थे कि अरे ये इनके सामने खड़े होकर मांग रहे हैं, तो वो अल्लाह से मांगना भूल गए। वो ये सोच रहे थे बच्चे कि भाई इन्हीं से मांग रहे हैं, उन्हीं को मांगना शुरू कर दिया। तो तब से ये मूर्ति पूजा का चलन हो गया, तब से ही। और इन्हीं में से बाज तबका वो हुआ कि जिनके बीच में जिनके अपने जो रसूल नबी आते थे उनकी तालीमात को भुला देते थे, और बाज वो थे जो हक पर रहे, तो उनकी तालीमात आज तक जिंदी है। और हिंदू भाइयों के यहाँ, हमारे यहाँ भी इसीलिए हमारा इस्लाम अभी तक जिंदा है, क्योंकि हमारे यहाँ तालीम दी जाती है, कुरान की, शरीयत की, हदीस की, फ़िक़्ह की तालीम दी जाती है। मदरसा जाइए तो बच्चा कुरान हिफ्ज़ करता है। कुरान को समझने के लिए 9 साल 10 साल तक मोहतमिम ने किसी बच्ची के साथ नाजायज़ हरकत किया हो, आज तक नहीं सुना होगा आपने। क्यों? क्योंकि ये ईमानदारी के साथ आपके बच्चों को तालीम देते, जो सही बात है कुरान में वो बताते हैं, हिंदू भाइयों में नहीं बताते। वरना हिंदू भाई ये जो मनुस्मृति लेकर भटके हैं, ये हम उसी मनुस्मृति में 50 मंत्र और श्लोक ऐसे हैं जो मैंने अल्लाह की वहदानियत पर, धर्म के नाम पर दंगा न होने पर हमने निकाल निकाल कर बताया, लेकिन ये लोग नहीं बताते हैं। हालांकि साफ तौर पर लिखा हुआ है गीता के अंदर, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम तिकार्य अकार्य व्यवस्थितों ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमर्हसि ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते काम कार्तान्न सिद्धिं वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। क्या लोगों, शास्त्रों की बातों को मानो, क्योंकि शास्त्रों के अंदर अच्छी बातें कही गई है। तुम किसी ऐरे गहरे की बात मत मानो, तुम किसी लाल बुजक्कर की बात मत मानो, तुम किसी योगी बाबा की बात मत मानो, कि तुम किसी ढोंगी बाबा की बात मत मानो, बल्कि तुम बात मानो किसकी? शास्त्रों की बात मानो। शास्त्रों की अगर बात मानते तो शास्त्रों में क्या लिखा? ये लोगों, अल्लाह एक है, कम्मा ब्रह्मा द्वितीयो नास्ते नैना नास्ते किंचन। शास्त्र में क्या लिखा है कि ये परमेश्वर, हम भक्ति किसकी करें? तो शास्त्रों में लिखा है तस्यते भक्तिवान से श्यामा, हे परमात्मा हम तेरी भक्ति करते हैं। न तस्य प्रतिमास्ति सनाम महदशा, हे परमात्मा हम तेरे किसी जिस्म की भक्ति नहीं करते, हम तेरे निरवकार की भक्ति करते हैं। हे परमात्मा हम जिंदगी कैसे गुजारें? अपने मोहल्ले के अंदर क्या हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ाई करें? तो परमात्मा क्या कहता? नहीं, अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलो लुप्तवम हीर चापलाम। गुस्से को कंट्रोल कर लो, झूठ मत बोलो, रिश्वत मत खाओ, प्यार मोहब्बत से लड़ो, प्यार मोहब्बत से रहो। अगर कोई दुष्ट आ जाए, अगर कोई राक्षस आ जाए, उसके सामने एकदम बिल्कुल सीना तान कर खड़े हो जाओ। ईश्वर हम अपनी बेटियों को कैसे रखें? अधे पश्यस्तिमो परि संतनाम पादको हरमाते कौशल्प को माओ, बेटियों को कहो कि वो पर्दे में रहे। ईश्वर क्या हम नमाज भी पढ़े? हाँ, साष्टांग करो। कैसे करो? प्रथमाधार का सीधे खड़े हो जाओ, दियो दिदियन मुझियते दूसरे नंबर पर झुक जाओ, तृतीयानंद कोटला कार्य तीसरे नंबर पर कुंडली मार कर बैठ जाओ, चतुर्थ देव चंद्र का चौथे नंबर पर थोड़ा झुको, पंचम बिंदु संयुक्ता आखिर में बैठकर तैयार दरूद शरीफ पढ़ो। किसमें लिखा है? शास्त्रों में लिखा। लेकिन ये बात बताएंगे नहीं, क्यों? वो सोचेंगे कि ये सारी बातें तो कुरान की है। जो बातें कुरान से टकराई उनको उठाकर फेंक दो।
कुरान में क्या था? अल्लाह एक है, तो उन्होंने कह दिया कि हमारा विष्णु भी हमारा परमात्मा, हमारा शिव भी परमात्मा, हमारा ब्रह्मा भी परमात्मा। होते होते इतने परमात्मा की 33 करोड़ परमात्मा, इंद्रम परमात्मा, विष्णु परमात्मा, मित्रा परमात्मा, वरुण परमात्मा, सारे परमात्मा, यानी फरिश्तों को भी परमात्मा बना दिया, फरिश्तों को भी खुदा का दर्जा दे दिया। क्यों? दुश्मनी। ये मुसलमान है, टोपी वाला है, इनके ग्रंथ में जो बात है मैच नहीं होना चाहिए, अलग करो, अलग करवा दिया, वरना नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये जो बोलते हैं कि श्री रामचंद्र जी का भव्य राम मंदिर निर्माण करेंगे, करिए। श्री रामचंद्र जी ने किसी इंसान पर कोई जुल्म किया है? आज तक नहीं किया। श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण जी ने किया है? उन्होंने भी नहीं किया। वो अलग बात है कि श्री कृष्ण जी थोड़े अय्याश टाइप के थे, तभी ने 1623 बीवियां रखी उन्होंने शादी करके, वो अलग बात। लेकिन जुल्म नहीं किया उन्होंने किसी पर। मर्यादा पुरुषोत्तम सत्यवती राम रामाय नमः। यह गरीमत है मेरे भाइयों कि आपके बीच में आपके उलमाए किराम हैं। आज हम उलमाए किराम एक एक बात आपको खोलकर बताते हैं, आज हम उनको वो इज्जत नहीं देते हैं। इमाम साहब फरिश्ता बनकर होना चाहिए। वंदे मातरम की हकीकत देखिए क्या, इस्लाम की जो बुनियाद है, जो रुकन है, जो इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट अबाउट वन गॉड, वो ये है कि एक अल्लाह पर आस्था। और वंदे मातरम कहने से कोई मुसलमान अगर सच्चे पक्के दिल से वंदे मातरम कह ले, अपने बच्चों को स्कूलों के अंदर इसका प्रेयर करा ले वंदे मातरम का, तो वो मुसलमान नहीं रहता, वो काफिर और मुशरिक बन जाता। वंदे मातरम, वंदे वंदना से बना, मातरम भारत माता, मैं तेरी वंदना करता हूँ। वंदना के माने इबादत क्या आते हैं? मैं तेरी इबादत करता हूँ, मैं तेरी योग करता हूँ। ये जिन लोगों को मालूम है उन्होंने ये आवाज नहीं उठाई। हमारे हिंदू भाइयों, अदब के साथ लेकिन बिला खौफ होकर मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने धर्म शास्त्र को पढ़ने की कोशिश कीजिए, खुद आपको पता चलेगा कि भाई आपको इबादत पूज्य प्रार्थना किन की करनी है। आपके अंदर इतने खुराफात हैं, बल्कि जिस कौम के अंदर भी खुराफात पैदा, बिदात और रसूमात पैदा होते हैं, वो उनके धर्म शास्त्र से हट कर जिंदगी गुजारता है तो वो कौम गलत रास्ते पर चलने लगती है। इस्लाम अल्लाह को एक मानते हुए उसकी इबादत करता है, चूंकि वह अपने धर्म शास्त्र कुरान करीम को पढ़ता है। कुरान करीम की तालीम होती है, अहादीस की तालीम होती है, उनको पता होता है भाई कुरान करीम के अंदर रब ने क्या कहा, कुरान करीम के अंदर अल्लाह क्या चाहता है। हमारे हिंदू भाइयों, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ने की कोशिश करो कि रामायण, महाभारत, गीता, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुराण, उपनिषद, इनके अंदर ईश्वर क्या कहना चाहता है, तो आपको पता चलेगा कि भैया आपको भक्ति किसकी करनी चाहिए। वंदे मातरम की इजाजत नहीं है, ये तौहीद और एक ईश्वरवाद के खिलाफ इशू है। वंदे मातरम, भारत माता मैं तेरी वंदना करता हूं। कुरान उठाकर हमने देखा तो मुसलमानों से कुरान कहता है कि ला ताबुदु मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा तुम किसी और की वंदना मत करना। माचिदन यद विशन सत सिखायो यारिशन यद्य कैतमुष्टु ही कृष्टिनानि विचरननि। ऋग्वेद का यह मंत्र ईश्वर परमात्मा कहता है कि सारी प्रजा उस एक परमात्मा की, परम शक्तिमान की पूज्य प्रार्थना करें। यह कैतमुष्टु ही कृष्टिनानि विचरननि, उस एक के अलावा किसी और की प्रशंसा नहीं होनी चाहिए। ऋग्वेद ईश्वर कह रहा। जो लोग वंदे मातरम पर मुसलमानों को फोर्स करते हैं, अगर वो ऋग्वेद यजुर्वेद पढ़ते तो वो कभी भी नहीं कहते। तालीम नहीं होती कहीं पर ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद की, धर्म शास्त्रों की, जिसकी बुनियाद पर वो अपनी जहालत की बुनियाद पर लोगों को मजबूर करते हैं। मुसलमान अपने कुरान करीम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा है। हमारे हिंदू भाइयों, आपसे मैं साफ लफ्जों में कहता हूं, आप भी अपने धर्म शास्त्रों को पढ़ो, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपके ऋषि मुनि महात्मा लोगों ने कैसे कैसे कार्य किए इस युग के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर। वंदे मातरम कहना जायज नहीं है। क्या सिर्फ वंदे मातरम कहने पर भी देश भक्ति का सबूत हो सकता है? 80% काश्तकार लोग ऐसे हैं जो वंदे मातरम कहना नहीं जानते। इंडिया की सरजमीन पर नहीं जानते हैं, तो क्या वो देशभक्त नहीं? क्या वो देशद्रोही हैं?
आज कहा जाता है कि अगर तुमने वंदे मातरम नहीं कहा तो तुम्हें पाकिस्तान जाना पड़ेगा और तुम देशद्रोही हो। अदब के साथ हमारे हिंदू भाइयों, मैं जानता हूं कि हिंदू मुसलमानों के बीच में गंगा जमनी तहजीब है, भाई भाई आपस में मिलकर रहना चाहते हैं। आपके इलाके के अंदर भी होगा, हमारे इलाकों के अंदर जाओ आप, एक दूसरे के फंक्शन के अंदर हिंदू मुसलमान शिरकत करते हैं। अगर हिंदू भाई की शादी होती है तो मुसलमान जाते हैं, और शरीय एतबार से हिंदू भाइयों के मजहबी त्योहार में मुसलमानों को नॉट अलाउड इजाजत नहीं है। बाकी आयादत के लिए भी जा सकते हैं और भाईचारे के लिए भी उनके प्रोग्राम में, किसी ऐसे प्रोग्राम में जिसमें आपकी शरीयत की और आपके इस्लाम की उनकी बेइज्जती तौहीन ना हो। शादी ब्याह के अंदर, खाने पिलाने के अंदर आप जा सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उनके मजहबी त्योहार में आपको इजाजत नहीं है। आज के डेट में भी भारत के अक्सर इलाकों के अंदर भी हिंदू मुसलमान मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन कुछ बहरूपिये जो इख्तिदार में है, कुछ फसादी लीडर जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर, कुछ हिंदू भी है कुछ मुसलमान भी है, जिनका परमात्मा उनका ईश्वर नहीं है बल्कि उनकी परमात्मा उनकी कुर्सी है, वह हिंदू मुसलमानों को लड़ाकर राज्य करना चाहते हैं। आप नहीं जानते कि भाई हिंदू मुसलमानों के बीच में क्या रिश्ता है। अभी मुजफ्फरनगर के अंदर कुछ फसादात हुए थे, वहां पर हमारे हिंदू भाइयों ने मुसलमानों की इज्जत और आबरू की हिफाजत की है। आप तारीख नहीं भुला सकते। आप अभी जाओ हजारीबाग झारखंड के अंदर, अभी 2 हफ्ता पहले आपने न्यूज़पेपर के अंदर पढ़ा होगा, 35 मुसलमानों के दुकानों को नजरआतिश कर दिया गया। किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है, मुसलमान फसादी है, मुसलमान कोई आतंकवाद है। किस आधार पर आप कह रहे हो? भाई श्री कृष्ण का पैगाम है अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांतिरपैशुनम दया बुलेश्वलो लूप तवम हीर चापलाम। श्रीमद् भगवत गीता 16वां अध्याय 2रा मंत्र। श्री कृष्ण जी विष्णु के 8वें अवतार महाभारत के मैदान में कौरवों को और कंस मामा को मिटाने के लिए श्री कृष्ण आए थे इस दुनिया के अंदर। तलवार उठाई थी, श्री अर्जुन के जरिए से कहा था कि इनका वध करो, इन जालिमों का, जो राक्षस है, जो फसादी है, जो ऐसे लोग हैं जो गरीबों का खून चूसते हैं। श्री कृष्ण ने कहा था कि इंसानों, किसी भी मनुष्य का तुम खून, किसी भी मनुष्य को अपनी जुबान से तुम तकलीफ मत देना। आज पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर बेचारे इन मासूम को तड़पा कर मारा जाता था, मारा जा रहा है आज के डेट के अंदर। हमारे हिंदू भाइयों और इन जालिम लीडरों से मैं पूछना चाहता हूं, जो हिंदू मुसलमानों को लड़ाना चाहते हैं अपनी कुर्सियों और अपनी सियासत की रोटियां सेकने के लिए, श्री कृष्ण का ये पैगाम देखो। उधर एक परमात्मा भगवान कह रहे हैं श्री कृष्ण जी, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा। किसी इंसान पर अपनी जुबान से उनको तकलीफ मत देना। अहिंसा सत्यम, सदा सत्य, और फिर ये बोलना करो दस्तयागा, गुस्से को थूक देना। लेकिन आज हजारीबाग के अंदर 85 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। क्या हिंसा सत्यम करो दस्तयागा की यही तफसीर है? किस बुनियाद पर कि मुसलमान देशद्रोही है? किस आधार पर? अगर मुसलमानों की कुर्बानी, खुदा की कसम, आपके इस भारत पर नहीं होती हमारे हिंदू भाइयों, अगर मुसलमानों ने तलवारें नहीं उठाते, अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत को नहीं अपनाते, तो इन जालिम अंग्रेज से आपका ये भारत माता कभी भी आजाद नहीं हो सकता था। अगर मुसलमान देशद्रोही होता, अगर मुसलमान देश का गद्दार होता, अगर मुसलमान देश का आतंकवाद होता, तो सन 1847 की तारीख उठा कर देखो, चांदनी चौक से लेकर खैबर तक का कोई दरख्त ऐसा बाकी नहीं था जिसमें 70,000 उलमाए किराम की गर्दनें न लटकी हुई हो। और तो और दिल्ली की जामे मस्जिद की सहन को उठाकर देखो, शामली की मैदान को उठाकर देखो, वहां पर आज भी हिंदुस्तान के अक्सर जगहों के अंदर आज भी 1.5 फीट जमीन मुसलमानों के खून से रंगीन है। किस बुनियाद पर? भारत की धरती को बचाने के लिए उन जालिम अंग्रेज से किन्होंने 70,000 उलमाए किराम ने, अगर ये देश के गद्दार होते, अगर ये देशद्रोही होते, अगर ये देश के आतंकवाद होते, तो ये 70,000 उलमाए किराम फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ते। अगर आज के डेट में आप कहते हो कि मुसलमान गद्दार है, तो इनकी कुर्बानियों का पहले ये सिला पेश करो। और तो और आपने ये कहना शुरू कर दिया कि मुस्लिम बादशाहों ने तलवारों के आधार पर इस्लाम का प्रचार किया था। किस बुनियाद पर? और नाम जोड़ दिया कि अल्लाह के साथ अकबर बादशाह का नाम लिया जाता है। आप जरा इनकी तारीख को दोहराओ,
अगर ये मुस्लिम साम्राज्य नहीं होते, अगर ये मुस्लिम बादशाह नहीं होते, कसम खुदा की पूरी दुनिया के अंदर आज आगरा का ताजमहल 7वें अजूबे के नाम से जाना जाता है। अगर मुसलमान इंडिया का देश का गद्दार होता, अगर अपने भारत का गद्दार होता तो आगरा का ताजमहल नहीं बनाता। अगर मुसलमान इस देश का देशद्रोही होता तो ये दिल्ली की लाल किला कभी नहीं बनवाते, ये कुतुब मीनार की बुलंदी नहीं देते। ये किनके बनवाए हुए हैं? इन्हीं मुस्लिम साम्राज्यों के बनाए हुए हैं। और तो और मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया के अंदर 45% हमारे हिंदू भाइयों के स्टूडेंट और उनके बच्चे पढ़ते हैं। अगर मुसलमान इस देश का गद्दार होता तो इतनी सारे हिस्ट्रिकल पैलेसेस नहीं देते। हम कहते हैं, आज भी कहते हैं कि मुसलमान अगर कुर्बानी पेश नहीं करते तो आज ये भारत माता हुसैन अहमद मदनी ने कफन बांध कर कहा था, जालिम अंग्रेज तेरे किसी तोप के गोलों में वो ताकत नहीं है जो हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल जाए। कफन सर पर बांधी हुई है अपने इस देश के लिए। इसका जवाब तो हमारे हिंदू भाइयों उन जालिम लीडरों से मैं कहना चाहता हूँ जिन्होंने आज के डेट के अंदर मुसलमानों को दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा, मौलाना हुसैन अहमद मदनी ने कहा, किसी AK-47 की गोलियों में वो गर्मी नहीं जो एक देश, सच्चा देशभक्त हुसैन अहमद मदनी के सीने को चीर कर निकल जाए। पूरी दुनिया जानती है ये तारीख किस बुनियाद पर अपने इस देश को बचाने को हिंदू राज्य बनाना चाहते हैं, वो भी एक्सेप्ट है। खुशी से 25 करोड़ मुसलमान आपको तस्लीम करेंगे कि हिंदू राम राज्य भी कायम कीजिए आप और वंदे मातरम भी हम कहेंगे। लेकिन देयर इज ओनली वन कंडीशन, क्या है वो? धर्म शास्त्र। ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य वर्तते काम कार्तान्न स सिद्धिम वाप्नुति न सुखम न पराम गतिम। श्रीमद् भगवद गीता 9वें अध्याय का 23वां मंत्र ईश्वर कहता है, ये शास्त्र विधि मुत्सुरज्य, जो मनुष्य धर्म शास्त्रों को मुत्सुरज्य छोड़ देता, नहीं मानता, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद, वर्तते काम करता, नफ्स परस्त हो जाता है, ना सा शुद्धिम वाप्नुति, उसको निजात नहीं मिलती, न सुखम न सुख मिल सकता है, न पराम गति, न पर मरने के बाद वो कभी स्वर्ग जा सकता। कौन? जो इंसान धर्म शास्त्रों को नहीं मानता। भगवत गीता 5वां वेद जिसको कहा जाता, हमारे हिंदू भाइयों के हर घरों के अंदर पढ़ा जाता है ये। अब देखिए श्रीमद् भगवत गीता का ये पैगाम हमारे हिंदू भाइयों के लिए जरूरी है कि वेदों को मानो। अब वेद क्या कहता है वंदे मातरम के सिलसिले में सुनिए, तस्सैते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम तेरी भक्ति करते हैं, भारत माता की भक्ति नॉट अलाउ, इजाजत नहीं, हम भक्ति तेरी करेंगे। और भारत माता की जमीन और इस भारत की धरती पर कोई आंख उठाकर देख ले तो हम उसके आंख को फोड़ दें। हम भक्ति सर तस्सैते भक्तिवान से शियामा, ए परमात्मा हम अपने सर तुम्हारे सामने झुकाएंगे, लेकिन भारत के लिए अपने सर को झुकाएंगे नहीं, अलबत्ता हम कटाने के लिए तैयार। ऋग्वेद कह रहा है तस्सैते भक्तिवान से शियामा, न देवा मुरच्छलामया, मट्टी के अंदर परमात्मा नहीं हो सकता, कंकर के अंदर ईश्वर नहीं हो सकता। कहाँ है वो? हम सबके दिल दिमाग के अंदर, मन के अंदर। न संदरोषी तिष्ठति रूपमस्या, न चक्षुषा पश्यते कश्चनैनम, परमात्मा हर जगह मौजूद है, सिर्फ एक धरती के ऊपर नहीं। जितना धर्म हमको प्यारा है उतना ही हमको ये देश भी प्यारा, ये मुल्क भी प्यारा, मोहम्मदुर रसूल, बल्कि देश से मोहब्बत करना ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की सुन्नत भी। आप अलैहिस्सलाम जब मक्कतुल मुकर्रमा से बाहर जा रहे थे, उन जालिम उत्बा शैबा वलीद हंज़ला ने आपको मजबूर कर दिया था हिजरत करने पर, तो रब बाहर निकल कर रो कर कह रहे थे कि काबा ए मक्का, तुझसे ज्यादा प्यारा इस कायनात के अंदर कोई शहर मुझे नहीं। अगर ये लोग मजबूर नहीं करते तो मैं तुझे छोड़कर नहीं जाता। तो देश से मोहब्बत करना नबी पाक अलैहिस्सलाम की सुन्नत। मुसलमान वो है जिसका सर रब के सामने झुकता है और अपने देश के लिए जिसका सर कटता है, झुकता नहीं है, कट जाता है। 70,000 उलमाए ने अपने सरों को काट दिया अपने देश के लिए, देशभक्ति के लिए। तो वंदे मातरम कहने की इजाजत वेदों में भी नहीं है। वेद साफ लफ्जों में कहता है
न तस्य प्रतिमास्ति यस्य नाम महद्दसा, उस एक परमात्मा की प्रस्तिश करो जिसकी कोई परमात्मा, जिसकी कोई तस्वीर नहीं है। अगर आप कहेंगे इसकी परमात्मा, इसकी भक्ति करो, तो इसकी तो एक बॉडी है ना, जमीन है। नसंदरोशी स्थिति, जमीन के अंदर परमात्मा नहीं है, परमात्मा हर जगह पर मौजूद, अल्लाह हर जगह पर मौजूद, ईश्वर हर जगह पर मौजूद। तो जब वैद मना कर रहा है तो इसीलिए हम उसको फॉलो नहीं कर सकते। तो अब जितने भी हमारे इन जालिम लीडर हैं जिन्होंने कहा कि वंदे मातरम कहो, अब उनको इस मैटर पर अमल करना चाहिए कि वंदे मातरम के ऊपर मुसलमानों को फोर्स ना करे। क्यों? मुसलमानों का कुरान ही नहीं, उनका वैद भी मना करता है। मुसलमानों का कुरान तो मना करता है साफ लफ्जों में, ला ताबुदू मिन दूनिल्लाह, अल्लाह के अलावा किसी के सामने सर मत झुकाओ। तो मुसलमानों ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन वंदे मातरम की मखालिफत वैद ऋग्वेद कर रहा है। तस्से ते भक्तिवान से शियामा, परमात्मा तेरी ही भक्ति करते हैं, किसी और की नहीं। तो वंदे मातरम में तो भारत माता की भक्ति आ जाती है, तो फिर तो शिर्क हो गया। जब शिर्क हो जाता है तो फिर क्या अंजाम होगा? अंधंतमा पराविशंति संभोति मुपास्ति ततो भूय व्योति तमो यो संभोति अमृता। अंधकार में जाने के लिए तैयार हो जाओ, जो एक ईश्वर को नहीं पूछते हो, एक परमात्मा को नहीं पूछते हो। विष्णु ब्रह्मा शिव इंद्रम मित्रम मित्रा वरुण, ये एक खुदा के नाम है संस्कृत के अंदर।